Good afternoon, student. Now, today we are going to look at the topic scientific management, which is developed by Frederick Taylor. Now, F.W. Taylor, he was born in 1856 in USA. Okay, in 1876, he joined the Midwell Steel Company as a mechanical engineer. So basically, he was from production department background. Okay, using his engineering background, Taylor set out scientific studies and techniques. So while he was working at that level, he set out some scientific studies and techniques, like which are the studies which are based on observations, and he realized that work should be done in an order, in a different way, because at that time he found that every employee is coming to work, and every day the work which was given to him or work which was allotted to him, it was different. Suppose today person or a labor is coming, you are telling him to do the loading work, and the next day when is coming, you are giving him tools to repair the machines. So this is not the kind of thing which he thought that it will give any kind of benefit to the laborers. This will lead him to imperfections. So he developed some techniques based on his observations. So he was primarily concerned about the efficiency of the worker and optimum utilization of resources. So he was working at the lower level. He started from the lower level. So basically he was concerned about the efficiency of the worker and proper utilization of resources. Just like this is just like where we read about the functions of the lower level management. So the same thing is highlighted over here. Efficiency is also required, and at the same time there should be no wastage of the resources. So he was just concerned about that. Now the Taylor principle and technique were based on observation he conducted in the factory. Method and production lack planning, and working method were haphazard. So same thing which I told you, that everything was not in order, so he made some principle to bring everything in order, and he realized that everything is going fine now in his factory. So this is how he worked, and he also made principles just like Fayol did. The only thing is Fayol principle is more diverted towards the management of the work, and his principle are diverted toward the efficiency. But it is not the case that the Fayol principle are not about the efficiency. There also the efficiency of the employee will definitely increase. But Taylor especially focused on the production areas where the efficiency can be increased of the workers. Now here the contribution of the Taylors are: Taylor published books and research paper explaining his techniques, scientific views on the industrial organization and management. So he also made some published some books and research paper which showed that what he observed and how the things can be changed in the industries. So it was just kind of management which he wanted to be implemented at the lower levels. Now, second is his major contribution was publishing of shop management or piece rate system. We are later going to study about this as well, and principle of scientific management. So his major contribution of principle of scientific management, where he observed the laborers or peoples working in the working in some company or industry, and piece rate weight system, where how to motivate the employee and all. So this was his most important contribution. He emphasized an adoption of scientific method to the problem of management. So he emphasized, इसने क्या किया, जोर दिया, okay, on adoption of scientific methods of the problem. जो भी problem सोचते हैं उसको scientific तरीके से solve करना. Okay, I will be bilingual so that it will be much better for you to understand. Now meaning of scientific management. So scientific management होता क्या है? And scientific management can be defined as the application of science for each and every element of management. In general language, it means simply applying scientific tools and method and trained personnel in order to increase the output.
Scientific management insists on replacement of rule of thumb by science. That means decisions in the organization should not be taken on the basis of wills and wishes of the manager, but decision must be based on scientific studies conducted by using scientific tools. So here the application, he's what he told here, that the application of science for each and every element of management. So when it comes to management, man, money, work, materials, all this management is required. So in general language, he was just trying to tell that we should apply the scientific tool and methods, and we should observe to increase the output, and we should not follow the rule of thumb. What is the rule of thumb? Like if somebody, suppose a manager is there and he's already working and he's experienced, then there are chances that he will say, हो सकता है कि मैनेजर क्या बोले कि मैंने तो ये कह दिया है कि इस प्रोसेस को इसी तरह से करना है और यही सबसे बेस्ट तरीका है। तो अगर किसी काम को करने का अगर बेस्ट तरीका है, तो उसने कहा साइंटिफिक स्टडी करो उसके बारे में, मतलब कि आप थोड़े लॉजिकल अप्रोच रखो। ये जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है ये क्या थे, थोड़े लॉजिकल अप्रोच के बारे में, तो क्या आप इसमें थोड़ा सा माइंड लगाओ, सोचो इसके बारे में कि क्या हो सकता है, और उसको उस जो मेथड है उसको आप चेक करो एक बार कि क्या वहाँ पर कुछ एफिशिएंसी बची है, मतलब वहाँ पे एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है कि नहीं। जैसे कि अगर कोई काम कर रहा है, अपन बोल सकते हैं कि 1 घंटे में काम कर रहा है, जैसे कि बैंक में कोई अकाउंट ओपन कर रहा है उसको 1 घंटा लग रहा है, तो उसने कहा कि अगर मैनेजर अगर बोल रहा है कि हाँ 1 घंटा तो लगता ही है, तो ये उसके ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, बट आपको क्या करना है, साइंटिफिक टूल्स मेथड्स अप्लाई करके ये पता करना है कि रियली कितना टाइम लगता है। और अगर अपन ऐसा कुछ पता कर ले वहाँ पर, जिससे कि मैं स्टॉप वॉच लेकर खड़ा हो जाऊँ उसके पास में, और मैं बोलूँ कि चलो आप स्टार्ट करो काम करना, मैं चेक करता हूँ। और जैसे ही वो अकाउंट ओपन करना शुरू करेगा, कंप्यूटर में एंट्रीज करना शुरू करेगा, मैं स्टॉपवॉच ऑन कर दूंगा और फिर मैं टाइम नोट करूंगा कि कितने टाइम में हो रहा है, और इसको ऑब्जर्व भी करता रहूंगा। तो इससे क्या होगा, मुझे पता चलेगा कि हो सकता है टाइम जो लगता है वो सिर्फ 20 मिनट्स है या 15 मिनट्स अकाउंट ओपन होने में। तो ये से अपने को ये आइडिया लग जाता है कि यहाँ पर 1 घंटा लगा रहा है वो व्यक्ति, जबकि एक्चुअली सिर्फ 20 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है, 1 घंटे में वो काफ़ी अकाउंट खोल सकता है। तो हमको उस एफिशिएंसी पे जोर देना है। तो मैनेजर ने बोल दिया रूल ऑफ थंब जैसा होता है साइंस में, कि ये बस जो हो गया फैक्ट, जैसे कि साइंस के प्रिंसिपल जहाँ हैं, आगे बोलते हैं ना, पास्ट में भी वैसे रहे, फ्यूचर में भी वही रहेंगे। साइंस के जैसे ग्रेविटी, वो हमेशा एक जैसे ही रहेंगे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर किसी ने बोल दिया तो ऐसा नहीं कि उसमें कुछ बेहतर नहीं हो सकता। यू कैन इम्प्रूव इट एंड यू कैन एक्चुअली इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी। तो एफिशिएंसी को बढ़ाने पे जोर दिया गया था यहाँ पर। ओके, मैनेजर के हिसाब से यहाँ पर नहीं चलना है, तो आपको साइंटिफिक टूल्स और टेक्निक यूज करते रहना है। दैट वाज द क्रक्स ऑफ दिस साइंटिफिक मैनेजमेंट। नाउ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, दीज आर इम्पोर्टेंट। यहाँ से आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है। Science is not a rule of thumb. According to this principle, Taylor insisted that each job performed in the organization should be based on scientific inquiry and not on intuition. Experience and hit and miss methods, he says that there must be thinking before doing, which is not the case of rule of thumb. Rule of thumb means dictatorship of manager, whereas scientific decisions are based on cause and effect relationship and scientific measurement of method and ways of productions. So here again the rule of thumb is coming into play. Now here they are saying that science is not a rule of thumb. तो साइंस रूल ऑफ थंब नहीं है। रूल ऑफ थंब क्या होता है, जहाँ पर इंटैक्ट बोला जाता है। जैसे कि अभी मैंने ग्रेविटी के बारे में बात की, तो हर जगह उसके प्रिंसिपल कैसे इंटैक्ट है, बदलने वाले नहीं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर अमेरिका में कुछ और ग्रेविटी होगी, इंडिया में कुछ और ग्रेविटी होगी, ऐसा नहीं होता। एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है वो, तो जो कि हम लोग फॉलो करते हैं और समझते हैं उस चीज़ को। बट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल जैसा कि इंटैक्ट हो जाना, रिजिड नहीं होना। यहाँ पर जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है ये रिजिडनेस को बताते हैं कि यहाँ पे कोई रिजिडिटी नहीं है। आपको अगर मैनेजर ने बोल दिया है कि हाँ, कि कुछ चीज़ ऐसी होती है जहाँ पर डिक्टेटरशिप ला देते हैं मैनेजर्स, तो मैनेजर्स ने अगर बोल दिया कि अकॉर्डिंग टू जैसा मैंने कहा है वैसे ही आपको करना है, यू विल हैव टू डू व्हाट आई सेड, तो इसी तरह से काम बेस्ट तरीके से होगा, ये उसका स्टेटमेंट है। तो आपको क्या करना है, उसको चेक करना उसके वर्क को कि हाँ रियली अगर ये जो बोल रहा है इतना टाइम लगता है, जैसे अभी अपन ने बैंकिंग का एग्जांपल देखा, तो वैसे अगर ये बोल रहा है अपने को कि हाँ इस तरह से
हो सकता है बेस्ट वे यही है। तो हम उसको साइंटिफिक टूल से चेक करेंगे, फिर पता करेंगे कि क्या है, उसका असर क्या होता है और क्या उसमें कुछ बेहतर करने की गुंजाइश है कि नहीं है। ओके, तो यहाँ पर जो बात हो रही थी दैट इट शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी एंड नॉट ऑन इंट्यूशन। तो इंट्यूशन मतलब कि किसी और के बिलीफ पे नहीं चलना है, एक्सपीरियंस उसका भी है तो उस पर भी नहीं चलना है। हिट एंड मिस मेथड, ये जो चीज़ है कि मतलब हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इस तरह की जो चीज़ें होती है, इस तरह के एटीट्यूड वाले मैनेजर्स हमको कई बार कंपनी में मिलते हैं, तो हम उनसे बात नहीं करते, उनकी जो स्टाइल है और वर्क पे फोकस करेंगे कि इसका जो स्टाइल है मैनेजर का, हम उसको इग्नोर करेंगे, हम वर्क की तरफ ध्यान देंगे और वो जो चीज़ है उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। नाउ Taylor insisted on product introduction of scientific inquiry into the domain of management practice. Taylor believed that there is only one best method to maximize efficiency. This method can be developed through work, study and analysis. As I told you, क्या बोला उसने कि आपको वो एक बेस्ट मेथड आपको पता करना है, तब तक आप एक्सपेरिमेंटिंग करते रहो वहां पर, जिससे कि एफिशिएंसी बढ़ती रहेगी कंपनी की, है ना। द मेथड सो डेवलप्ड शुड बी सब्स्टिट्यूट ऑफ रूल ऑफ थंब। तो ये जो मेथड रहेगा ये रूल ऑफ थंब को एक तरह से सब्स्टिट्यूट कर देगा, ओके, उसके उसको एक तरह से रिप्लेस कर देगा वहां पर। तो यहाँ पर हमने कोई मैनेजर जो बोल रहा है उसके डिक्टेटरशिप को इग्नोर कर दिया है। Now, for example, in rule of thumb, the standard time required to do a particular job is decided by the manager on the basis of his past experience. तो यहाँ पर क्या, कोई भी मैनेजर को पास्ट एक्सपीरियंस, अगर कोई काम कर रहा है काफी साल से, तो उसके कुछ एक्सपीरियंस के थ्रू वो जान लेता है कि इस काम को करने में कितना क्या टाइम लगता है और वो उसको फिक्स कर देता है, हाँ ये इतना ही टाइम लगता है इसको काम को करने में। और टेलर ने क्या बोला, टेलर ने जोर दिया, इंसिस्ट किया दैट स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, ये बहुत ध्यान से पढ़ना है पे, फॉर अ जॉब शुड बी सेट अप साइंटिफिकली बाय परफॉर्मिंग टाइम स्टडी इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एंड देन द डेज टारगेट शुड बी फिक्स। तो यहाँ पर उसने क्या बात करी, टेलर ने ये बात करी यहाँ पर कि सबसे पहले स्टॉप वॉच लेकर, जैसे अपन ने बात करी थी, 20 मिनट लग रहे थे अकाउंट ओपन करने में, तो 20 मिनट लग रहे थे, मैं देख लिया अब कि हाँ 20 मिनट्स में एक अकाउंट ओपन होता है, तो उस पे अपन एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर लेंगे। हो सकता है कुछ अकाउंट कॉम्प्लिकेटेड हो या कोई कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इजी हो, बट ये जो स्टैंडर्ड टाइम उसने दिया सब कुछ चेक करते हुए, तो उसको देखते हुए हम क्या करेंगे, उस चीज को देखते हुए हम वर्क को डिसाइड करेंगे, टारगेट फिक्स करेंगे। जैसे कि 20 मिनट्स लगे एक अकाउंट को ओपन करने में, तो हमको पता है कि भाई 1 घंटे में वो ज्यादा कर सकता है। एटलीस्ट चलो 3 अकाउंट नहीं बोल सकते हैं, बट देखा जाए तो 20 मिनट्स तो इजीली हो जाना चाहिए। कुछ अकाउंट इजी भी होंगे, कुछ डिफिकल्ट हो जाते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है बैंकों में, जैसे कि केवाईसी नहीं मिल रहा है तो उसका टाइम लग गया, बट एटलीस्ट 2 अकाउंट तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं 1 घंटे में एक अकाउंट उस बंदे का कर रहा था वो, अगर 1 घंटे में 2 अकाउंट प्रोसेस कर देता है, तो भी मैंने उसकी एफिशिएंसी को डबल कर दिया। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है। और यहाँ पर मैनेजर कुछ भी बोले, बट ये जो चीजें हैं ये चेक करने वाली ये चेक करने वाली चीजें हैं। अब मैनेजर्स तो हर जगह रहते हैं, आपने देखा होगा बैंकों में रहते हैं, पर ऊपर से जो टीम आती है जब वो ऑडिट के लिए आते हैं, तो वो कई बार इंटरनल ऑडिटर्स को भी बुलाते हैं। तो वो जो चेक करते हैं वर्क की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, कुछ स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट टीम्स आती हैं, तो वो ये चेक करके बता देते हैं कि यहाँ पर कितना वर्कलोड है या नहीं है, एम्प्लॉयज के ऊपर प्रेशर है कि नहीं है। तो वो लोग पता कर लेते हैं कि काम कितना है। हो सकता है कि काम सिर्फ 5 आदमियों का है, पर वहां पे 10 व्यक्ति मिलके कर रहे हैं। तो ये जो चीज है उसको चेक करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है वर्क बहुत है, ऐसा भी बोलते हैं एम्प्लॉयज की, वर्क बहुत है हमसे ठीक से नहीं हो पाता है। तो अगर रियली ऐसा है तो उसको हम चेक कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू, और हम टाइम स्टडी एक स्टैंडर्ड टाइम निकाल सकते हैं। अगर वो सच बोल रहे हैं रियली, तो अगर टाइम निकल के आता है उतना ही जितना वो बोल रहे हैं, और वर्क को फिर उसको देख के बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि टारगेट उसके अकॉर्डिंग हम सेट करके देंगे। अगर उनको बहुत मुश्किल आ रही है, क्योंकि हो सकता है कि वो सही बोल रहे हो एम्प्लॉयज कि वाकई ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि ये इतना नहीं हो पाएगा उनसे, तो हम इस चीज़ को चेक करते हुए उनको टारगेट फिक्स करके देंगे। तो इससे वो भी खुश रहेंगे, और खुश रहेंगे तो अच्छे से काम कर पाएंगे कंपनी के अंदर। मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट कीपिंग वर्कर्स हैप्पी, और उनसे काम लेना, है ना। ओके, आफ्टर दिस नाउ ये केस स्टडी यहाँ पे, लेट अस डिस्कस दिस, उसको छोड़ते नहीं है। रोहन इज डिजायरस ऑफ सेटिंग अप स्मॉल फैक्ट्री टू मैनेज मैन्युफैक्चर पैकिंग मटेरियल। रोहन क्या बनाना चाहता है, पैकिंग मटेरियल्स की कंपनी लगाना चाहता है, स्मॉल फैक्ट्री। ही प्लान टू यूज लॉजिकल अप्रोच, ये वर्ड आया लॉजिकल अप्रोच, एंड टेक एवरी डिसीजन विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स।
मतलब कि हर डिसीजन को क्या करेगा, फैक्ट एंड फिगर से चेक करेगा। मतलब कि जैसे अपन ने अभी फिगर्स, जैसे कि स्टॉप वॉच को यूज करके कुछ फिगर निकाला, पहले कितना टाइम लग रहा था, उसकी बात हो रही है, डेटा की बात हो रही है, विथ प्रॉपर रीजनिंग रादर देन रिलाइंग ऑन हिट एंड मिस मेथड। तो ऐसा नहीं कि बस हाँ चलने दो, जैसा चल रहा है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं। फैक्ट एंड फिगर देख लिए, उसमें लॉजिक लगाएंगे और फिर उस काम को करेंगे। तो यहाँ पर जब लॉजिकल अप्रोच की आप बात करते हो तो आप साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हो, यानी कि टेलर के प्रिंसिपल की बात कर रहे हो। तो आंसर वो हो जाएगा, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज बाय द रोहन। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा अपना प्रिंसिपल, जो अभी अपन ने पढ़ा, कौन सा है, साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब। यहाँ पे हम लॉजिकल अप्रोच रखेंगे। नाउ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये थोड़ा इजी है और इंटरेस्टिंग भी है। ओके, हार्मनी मतलब प्रेम भाव से काम करना, कंपनी के अंदर हाथ में हाथ मिला के काम करना, एक यूनिटी की स्पिरिट होना। और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है मतभेद, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे की नहीं सुनना, ये चीज। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है अपन ये देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, दोज हु वर्क टुगेदर इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क इन हार्मनी, दैट इज विथ म्यूचुअल दैट इज म्यूचुअल गिव एंड टेक एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो यहाँ पर एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप होना चाहिए। जनरली इन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर टू ग्रुप्स, वर्कर्स ग्रुप एंड मैनेजमेंट ग्रुप। ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में किसकी बात आप करने वाले हो, एक तो वर्कर्स लोग हैं, ये समझ लो कि एक जगह वर्कर खड़े, एक जगह कौन खड़ा है, मैनेजमेंट वाले खड़े। एंड बोथ द ग्रुप्स आर राइवल ऑफ ईच अदर, दोनों क्या है, एक दूसरे के दुश्मन है। ऑलवेज फील दैट देर आर अंडर पेड। अब वर्कर क्या सोचता है, देखो हमेशा वर्कर को लगता है कि मुझे कम पैसा मिलता है। वर्कर्स ऑलवेज फील दैट दे आर अंडर पेड, ऐसी लगता है ना कि यार मुझे तो बहुत ज्यादा कम पैसा मिल रहा है, ये लोग तो मुझसे जम के काम ले रहे हैं, यही उनकी सोच रहती है। ओके, एंड आर ओवर बर्डन विद द वर्क ऑफ मैनेजमेंट, मतलब उनको बहुत सारा काम दे रखा है और पैसा कुछ नहीं दे रहे। एंड दे ऑलवेज फील दैट वर्कर आर गुड फॉर नथिंग। और क्या सोचते हैं मैनेजमेंट उनके बारे में, वो उनको लगता है कि मैनेजमेंट सोचता है कि ये वर्कर तो किसी लायक ही नहीं है, है ना। तो ये जो चीज है, जो उनकी फीलिंग की बात हो रही है, इन दिस प्रिंसिपल टेलर इंसिस्टेड दैट इज द नीड फॉर बोथ द ग्रुप टू चेंज देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर। ही इंसिस्टेड ऑन मेंटल रेवोल्यूशन। किस पे जोर दिया उसने, मेंटल रेवोल्यूशन पे, कि इन लोगों को यानी कि वर्कर्स और मैनेजमेंट वालों को आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा अपना एटीट्यूड एक दूसरे के प्रति। क्योंकि मैनेजमेंट वाले यही बोलते रहते हैं कि ये लोग किसी काम के नहीं है वर्कर, और ये लोग क्या बोलते हैं, इन लोगों को हमारी फिक्र ही नहीं है, मैनेजमेंट हमारे ऊपर ध्यान नहीं देता है, हमको सैलरी नहीं देता है, पैसे नहीं देता है, ये उनकी सोच रहती है। तो यहाँ पर एक डिस्कॉर्ड क्रिएट हो जाता है, मतलब मतभेद, क्योंकि दोनों एक ही नहीं होते। तो यहाँ पर देखो कोई काम कर रहा है तो उसको ठीक से पेमेंट दो। मतलब मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में अगर वर्कर्स को लग जाए कि मैनेजमेंट मेरा बहुत ख्याल रखता है, पैसा टाइम पे दे देता है, तो वर्कर को क्या लगेगा, नहीं यार मैं जी जान लगा दूंगा इनके लिए, और कंपनी फिर अपने आप परफॉर्म करने लग जाती है। तो ये एक मैनेजमेंट की बात होती है। अगर आप रियली उसको पेमेंट नहीं करोगे तो बेचारा एक तरह से मर मर के काम करेगा। तो ही विल नॉट फील मोटिवेटेड एट वर्क। वो सिर्फ ऐसा है कि बस उसका घर चल रहा है इसलिए वो काम कर रहा है। उसको ऐसे दिल से काम करने वाली बात नहीं कि अरे नहीं मेरी कंपनी है मैं कर दूंगा, मोटिवेटेड तो है ही नहीं। ओके, तो यहाँ पर इस तरह के डिस्कॉर्ड नहीं होनी चाहिए, हार्मनी से काम होना चाहिए। इंस्टेटेड ऑन मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि दोनों को अपनी सोच एक दूसरे के प्रति बदलनी होगी, which mean complete change of attitude and outlook for each other. They must develop positive thinking for each other and work with harmony and avoid discord as their objective are in one direction only. तो इनको लड़ाई झगड़े हटा के एक दिशा में काम करना होगा, कंपनी के टारगेट्स ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के बारे में सोचना पड़ेगा। और ये तभी पॉसिबल है जब वो लोग आपस में मिलजुल कर काम करें। द मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी विद द वर्कर्स। ये भी वर्ड याद रखना कि शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी विथ वर्कर्स एट द सेम टाइम वर्कर मस्ट कंट्रीब्यूट टू बेस्ट देयर बेस्ट लेवल। टेलर फील दैट प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉय। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट को गेन्स जो भी होते हैं, जो भी प्रॉफिट होते हैं, तो उसको कुछ पार्ट तो वर्कर के साथ साथ में शेयर करना चाहिए। जैसे कि उनको बोनस दे दिया टाइम में। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कोई वर्कर को बोनस दिया जा रहा है क्योंकि उसने काम किया है। तो वो वर्कर क्या करेगा, वो अपने बेस्ट लेवल पे फिर काम करने की कोशिश करेगा जब उसको रियलाइज हो जाएगा कि मैंने काम किया तो मेरे वर्क का जो रिवॉर्ड है ये मुझे मुझे मिल रहा है बोनस के रूप में। तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करता है। और टेलर्स ने ये भी कहा कि प्रॉस्पेरिटी ऑर्गेनाइजेशन की किस पे डिपेंड करती है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को खुश रखना है। देखो
प्रॉस्पेरिटी मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मैनेजमेंट अमीर हो या वर्कर लोगों को पैसा मिले, दोनों को खुश रखना है। तो ये दोनों के पास पैसा आएगा तो दे बोथ विल बी हैप्पी। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट सोचा कि सारा पैसा मैं ही रख लूँ। इंडिया की बहुत सारी कंपनीज में ये आदत है कि वो सोचते हैं कि सारा मैनेजमेंट पैसा खा जाती है और वर्कर को नहीं देते हैं। और हमारे यहाँ पे ऐसा भी देखा है कि बहुत सारी कंपनीज जैसा परफॉर्म करना चाहिए वैसा दिल से कोई परफॉर्म नहीं करता है। ओके, तो ये चीज पे अपने को ध्यान देना है। अब एग्जांपल देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्कर इज टू अर्न मोर, है ना। वर्कर क्या चाहेगा हमेशा कि ज्यादा पैसा कमाओ। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन इंस्टेड। अब मैनेजमेंट क्या चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। इंस्टेड ऑफ डिस्कॉर्ड फॉर ईच अदर्स ऑब्जेक्टिव, वर्कर कैन अर्न मोर बाय प्रोड्यूसिंग मोर विच विल हेल्प इन मैक्सिमाइजिंग द प्रोडक्शन ऑल्सो। तो डिस्कॉर्ड करने के बजाय ये जो वर्कर्स का ऑब्जेक्टिव वो क्या हो सकता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है, तो इससे क्या होगा, अपना प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। सो देयर मस्ट बी paternalistic style of management as in case of Japanese company. In Japanese company, this principle is practiced here by the manager treat workers as a part of their family. तो जापान में क्या होता है, जो मजदूर जो काम कर रहे हैं तो उनको एक तरह से नौकर नहीं समझा जाता, उसको एक फैमिली की तरह देखा जाता है। एंड वर्कर ऑल्सो डू नॉट शो देयर एजिटेशन बाय गोइंग ऑन स्ट्राइक। और अगर वर्कर्स को ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ हमारे साथ गलत हुई है तो स्ट्राइक पे नहीं चले जाते हैं। इंडिया में मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्राइक की धमकियां दी जाती है, पर वहां पर क्या होता है, वो स्ट्राइक पे नहीं जाते हैं। उनको कैसा डिससेटिस्फेक्शन कैसे दिखाते हैं, एंड सिंपैथी अगर गेन करनी हो उनको मैनेजर्स मैं या मैनेजमेंट को दिखा के कि कुछ हम लोग खुश नहीं है या फिर हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या करते हैं, एक अपने उस पे ब्लैक रिबन बांध लेते हैं अपने हाथ पे और फिर वो काम करते हैं। कई बार अपन स्पोर्ट्स में भी देखते हैं कि किसी चीज से आप खुश नहीं है तो आप ऐसा नहीं कि उसके लिए कुछ आवाज उठाओगे, बट बगैर कुछ कहे भी किया जा सकता है। जैसे कि ब्लैक रिबन बांध के कई बार क्रिकेटर्स खेलते हैं, तो वो चीज किसी डिससेटिस्फेक्शन को दिखाया जाता है। तो वो चीज ये लोग भी करते थे। ओके, तो इससे क्या लड़ाई नहीं है, ऐसा नहीं कि स्ट्राइक पे चले गए, काम नहीं रोका उन्होंने। वो वर्क कर रहे हैं, बट वो क्या दिखा रहे हैं, एक सिंपैथी लेने के लिए कि हमने एक रिबन बांध रखा है अपने हाथ पे जो कि हमारा एक डिससेटिस्फेक्शन दिखाता है यहाँ पर। तो वो चीज़ अब मैनेजर को इतना होना चाहिए कि सिंपैथी गेन हो गई तो वो भी पूछते हैं कि आपकी कंसर्न क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो इससे क्या होता है, हार्मनी क्रिएट होती है और उनको फिर उस चीज़ में ठीक किया जाता है तो अच्छे से काम होता है फिर कंपनी के अंदर। ओके, so this all these managers should always try to help this worker and encourage them। उसको encourage भी करना है, उसकी मदद भी करना है, ये चीज आपको करनी पड़ती है। ओके, इसी से वर्क अच्छा होता है। एक बार अगर इंटीग्रेशन हो जाए वर्कर्स के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में तो कंपनी बहुत ही अच्छी चलती है। ओके, okay, now here the case study, ABC Limited, a tire manufacturing concern, has been established for more than 10 years। ABC Limited को कितना साल हो गया है, 10 years हो गया है। और ये क्या बनाती है, टायर बनाती है। जैसे एमआरएफ बनाती है, सीएट बनाती है, तो वैसे ये भी मान लेते कंपनी है। हैविंग गुड प्रॉफिट इन द पास्ट, कंपनी वांटेड टू एक्सपेंड फर्दर। अब क्या पास्ट में बहुत प्रॉफिट है, कंपनी खुद को बढ़ाना चाहती है, मतलब कि अपनी ब्रांचेस बढ़ाना चाहती है। एंड हैज डिड नॉट डिक्लेयर बोनस फॉर द प्रीवियस ईयर। और पिछले ईयर का जो बोनस था वो क्या डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि वो बढ़ाना चाहती है। तो ये कंपनी का समझ में आता है कि अगर वो आप ग्रोथ चाहते हो तो आप बोनस नहीं दे रहे हो, फिर पिछले साल का बोनस नहीं दिया। द वर्कर गॉट एजिटेटेड एंड ट्रेड यूनियन डिक्लेयर्ड स्ट्राइक एंड डिमांडेड बोनस एंड अदर फैसिलिटीज। अब वहाँ पे वो क्या हुआ, लोग खुश नहीं हुए वर्कर, वो लोग इससे बिल्कुल अनहैप्पी थे और वो लोग कहाँ चले गए, स्ट्राइक पे चले गए और मांगने लगे कि हमको भी बोनस चाहिए, ये तो बड़ी गलत चीज़ हो गई हमारे साथ में। तो द मैनेजमेंट ने क्या किया, मैनेजमेंट डिसाइडेड नॉट टू गिव इनटू देयर डिमांड्स। अब वहाँ पे मैनेजमेंट डिसाइड कर लिया कि भाई यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हम उनकी डिमांड फुलफिल नहीं करने वाले, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है, हमको तो बस कंपनी को बढ़ाना है। क्योंकि वर्कर तो ऐसे करते ही रहेंगे, ये उनकी सोच रहती है। तो यह पूछ रहे विच प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ओवरलुक्ड इन द गिवन केस, तो इसका आंसर होगा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ओके, यही वाला प्रिंसिपल यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर बात ही ऐसी हो रही, क्योंकि जब बोनस की अपन ने बात की थी तो यहाँ पर बात आ रही है उसकी बोनस वाली, और उसको शेयर करना चाहिए था तो डिक्लेयर ही नहीं किया, है ना। तो ये जो चीज़ है ये गलत हो जाता है। तो ये हमको यहाँ से क्लिक हो जाता है कि किस चीज़ की बात हो रही है। एक तो मैनेजमेंट की बात हो रही है यहाँ पर और वर्कर की बात हो रही है। जब भी ऐसा कुछ होगा तो आंसर कौन सा हो सकता है अपना, ये वाला हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड वाला। तो केस स्टडी अगर एग्जाम में आती है तो इस चीज़ पर ध्यान देना कि किसकी बात हो रही है, वर्कर और मैनेजमेंट की। ठीक है, क्लियरली यहाँ पर अनहैप्पीनेस दिख रही थी उनके बीच। नाउ नेक्स्ट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म।
कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ओके, साउंड वेरी क्रिटिकल, ये वर्ड बोलने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके, दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ द हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब ये जो प्रिंसिपल है, पहली चीज आपको याद रखनी है कि ये किसका एक्सटेंशन है। ये अपना हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड वाला जो अभी अपन ने पढ़ा था उसी का एक एक्सटेंशन है, मतलब उसी के ऊपर बेस्ड है, जिसको और थोड़ा आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। According to this principle, work must be carried out in cooperation with each other, with mutual confidence and understanding of each other. तो यहाँ पर जो काम होना चाहिए तो कॉपरेशन के साथ में होना चाहिए, एक दूसरे का साथ देते हुए काम होना चाहिए। वर्कर एंड मैनेजर मस्ट वर्क, वर्कर्स एंड मैनेजर्स मस्ट वर्क इन कोऑपरेशन, दोनों को क्या कोऑपरेशन में काम करना पड़ेगा। द मैनेजर मस्ट टेक वर्कर्स इन कॉन्फिडेंस बिफोर सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टास्क फॉर देम, बिकॉज when standard or target are set up in consultation of the workers, they will try to do their best to achieve it। तो यहाँ पर क्या होता है कि वर्कर्स को ये जो मैनेजमेंट है, मैनेजर्स है, उनको किससे पूछना चाहिए, वर्कर्स को, कि कितना ठीक लगता है तुमको, टारगेट क्या रहेगा, अगर तुम अचीव कर पाओगे तो तुम्हारे हिसाब से बता दो, हम लोगों ने तो इतना फिगर सोचा है। तो वर्कर को जो लगता है अगर वो पूछ के करोगे आप उनसे, तो वो चीज़ कैसी हो जाती है कि वो लोग सोच लेते हैं कि ये तो पूछ रहे हैं हमसे, तो वो सेट करते हैं कि सर इतना ठीक रहेगा, टारगेट हम लोग अचीव कर लेंगे। तो ऐसे मिलजुल के जब आप डिसीजन लेते हो तो एक तरह से कॉपरेशन बन जाता है आपका। तो यहाँ पर इंडिविजुअलिज्म की भावना नहीं कि एक ही ने सोच लिया कि इतना दे दो इनको, थोप दो इनके ऊपर माथे में, ये लोग करेंगे जैसे भी करना रहेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। आजकल कई कंपनी में, जैसे कि अपने इंडिया की कंपनी बता देते हैं, इंडिया इन्फोलाइन, तो वहाँ पर ऐसे पूछते हैं मैनेजर्स कि क्यों ना इनसे इनसे ही पूछा जाए तो कितना टारगेट तुम कंप्लीट कर सकते हो उस मंथ का या फिर इस ईयर का। तो वो बता देते सर हम इतना कर पाएंगे, या फिर इस महीने में हम इतना कर पाएंगे। तो वो बोलते हैं कि ठीक है डन, तो तुम इतना कर सकते हो, का मैनेजमेंट ने तो इतना डिसाइड किया है, तो इतना हो जाएगा क्या। तो उसके हिसाब से ये लोग अग्री करते हैं। अगर नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टारगेट है तो उसको कम करने के लिए बात करते हैं, और वर्कर फिर उसको अचीव करने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि एक तरह से टारगेट किससे पूछ के लिया गया है, उन्हीं वर्कर से पूछ के लिया गया है, उन्होंने हाँ कहा है। तो वो लोग ये नहीं बोल सकते नहीं सर ये भी ज़्यादा था। तो ये जो चीज़ है वो उसको डेफिनेटली अचीव करने के लिए जाएंगे। To have cooperation, management should welcome good suggestion from the employees and they should be rewarded for their suggestion। अब यहाँ पर क्या होता है, उनको जो इनके ये सजेशन वो लोग दे रहे हैं, तो उसके लिए उनको क्या मिलना चाहिए, रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमेशा ओपननेस रहती है कि जो भी अच्छा सॉल्यूशन बताएगा या फिर इस तरह से कुछ सजेशन देगा तो हम उसको इनाम देंगे। एट द सेम टाइम वर्कर शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक एंड मेक अनरीजनेबल डिमांड। देर मस्ट बी ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम। बट वर्कर को यहाँ पर क्या नहीं करना चाहिए, बेवजह स्ट्राइक पर नहीं चला जाना चाहिए और फालतू की डिमांड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो देर यहाँ पर एक ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम है, मतलब कि क्लियरली उनसे वर्कर से पूछ लेते हैं मैनेजर्स की आपको क्या सही लगता है, टारगेट के हिसाब से उनसे पूछ के टारगेट सेट किए जाने चाहिए। अगर ये बात आपको होती हुई दिखती है, किसकी बात होती दिखेगी, केस स्टडी आई है और आपने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे वर्कर और वर्कर की और मैनेजर्स की बात हो रही है, और यहाँ पे टारगेट फिक्स करे जा रहे हैं ना, टारगेट फिक्स करे जा रहे हैं, पर किससे पूछ के किए जा रहे हैं, वर्कर से पूछ के किए जा रहे हैं। तो वर्कर से पूछ रहे हैं मैनेजर्स और फिर उसके बाद टारगेट सेट किए, तो अपना कौन सा आंसर होगा, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये आंसर अपना होगा। नाउ according to Taylor, there should be almost equal division of work and responsibility between worker and management. All day long, the management should work almost side by side with the workers, helping, encouraging and smoothing the way for them। तो यहाँ पर बिल्कुल इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, मतलब कि जो वर्क दिया गया है और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई है तो बराबर तरीके से बटी हुई होनी चाहिए। और ये जो वर्कर्स को हमेशा मैनेजमेंट का हेल्प मिलना चाहिए और उनको मैनेजर्स को उनको एनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि स्मूथ वे में वर्किंग होता रहे। एग्जाम्पल देखेंगे, वाइल असाइनिंग अ जॉब टू वर्कर्स, काम देने के टाइम वर्कर को अगर आप काम दे रहे हो, इफ मैनेजमेंट आस्क देम अबाउट देयर इंटरेस्ट एंड देन द वर्क इज assigned according to their interest, डेफिनेटली द वर्कर विल परफॉर्म इट मोर एफिशिएंटली। मतलब कि देखो, अगर आप आए, आपने बोला कि सर मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं किसी मशीनरी पर काम करूँ, तो हमने उसको बोला नहीं मशीनरी नहीं, अभी तो तुम इंजीनियर हो तो फर्क नहीं पड़ता, बाकी आज तुम ये काम नहीं करो, तुम कोई दूसरा काम कर देते हो, तो उसको किसी और काम पे बैठा दिया अपन ने। तो क्या वो मन से काम करेगा, उसके इंटरेस्ट का काम है क्या, वो नहीं है। पर अगर आपके इंटरेस्ट का काम हो, जैसे कि आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, तो वो डेफिनेटली आप वो कर के आओगे।
जस्ट थिंक, जैसे कि अगर कहीं भी ये चीज़ होती है, अगर आप पूछ के करते हो काम, जैसे कि अब मेरे को आपसे काम लेना है, बर्थडे पार्टी अगर किसी को करवानी है, तो अगर 4 जने आए तो अपन 4 जनों को बोल दिया, देखो हमको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो कौन क्या चीज़ लाएगा, देखो बेक समोसे चाहिए, हमको पेस्ट्रीज चाहिए, केक चाहिए और कोल्ड ड्रिंक चाहिए। तो कोल्ड ड्रिंक लेने कौन ज़्यादा फील कंफर्टेबल करेगा जाने के लिए, तो आप बोलोगे कि कोई ना कोई तो रेस करेगा हैंड कि मैं कोल्ड ड्रिंक में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि वो आपको काम करने में मज़ा आता है, तो योर लाइकिंग इज़ देयर, कि आपको इंटरेस्ट आता है उस चीज़ को करने में। कोई बोलेगा नहीं बेक समोसे, चलो मैं कर लूँगा बेक समोसे। तो ये जो चीज़ है आपके इंटरेस्ट की वजह से आप उसको हाँ करते हो, और डेफ़िनेटली जहाँ आपका इंटरेस्ट होता है जिस काम को करने में, वो आप कर लेते हो। जैसे कि कोई स्पोर्ट्स वाला है, कोई खेलने जाना चाहता है, और कोई बच्चा है और उसके साथ उसको पढ़ाई भी करना है, तो उसका इंटरेस्ट किधर लाई करेगा? डेफ़िनेटली वो उस चीज़ से रिलेटेड जहाँ पर उसका इंटरेस्ट है, जैसे कि गेम्स, तो वो चीज़ें वो जल्दी करेगा। पर जहाँ पे उसका इंटरेस्ट नहीं, जैसे कि पढ़ाई, हो सकता है होमवर्क छोड़कर भी वो अपने स्पोर्ट्स के कामों को करता रहे, फिर बाद में वो चीज़ नेग्लेक्ट हो जाती है। तो ऐसा होता है, तो अगर वर्कर भी वहाँ पर है तो उसके इंटरेस्ट का जो काम है उसको दे दो, कि उसे क्या अच्छा लगता है, उसको करना क्या पसंद है, उसको उस चीज़ को दे दो। तो वो चीज़ वो बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है, और ये पूछ के करना चाहिए उनसे। ओके? तो टारगेट एंड वर्क यहाँ पर दिख रहा है। दोनों ही चीज़ें हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो असाइनमेंट वाली बात भी यहाँ पे हो सकती है, और क्या हो सकती है, आपको टारगेट वाली बात भी हो सकती है। तो हमको उससे पहचानना पड़ेगा केस स्टडी के अंदर। ओके, केस स्टडी आई गई है, इसको पढ़ लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फॉयल आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री। अब वो बोल रहे हैं फेलर और फॉयल और टेलर के प्रिंसिपल्स कैसे हैं? एकदम कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि जैसे कि इंक और पेन, तो दोनों साथ साथ जाते हैं ना, जैसे कि एक के बगैर दूसरा अधूरा है, तो दोनों ही प्रिंसिपल जरूरी है। वन बिलीव दैट मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर टू द कंस्ट्रक्टिव सजेशंस मेड बाय द एम्प्लॉयज। ओके, तो मैनेजमेंट को कभी भी अपने कान बंद करने नहीं चाहिए। कुछ भी एक अच्छा सजेशन आ रहा है जब किसी एम्प्लॉय से, तो ऐसा नहीं कि उनकी नहीं सुनी क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपर्ट है, नहीं, उनके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। वाइल द अदर सजेस्टेड दैट अ गुड कंपनी शुड हैव एन एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम। और कई कंपनियों में आज की तारीख में ऐसा है भी कि एम्प्लॉय सजेशन बॉक्स रहते हैं। अगर आपके पास बहुत अच्छा आइडिया कि आप, तो आप सजेशन देकर उस बॉक्स में उस लेटर को डाल सकते हो, मैनेजमेंट उसको पढ़ेगा। ओके, whereby suggestion which result in substantial time or cost reduction should be avoided। देखिए, अगर आपके पास ऐसा कुछ सजेशन है जिससे कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है, तो ये आपका जो सजेशन की बात आ रही है, तो आपसे पूछा गया, तो एक तरह से यहाँ पर जब पूछा जा रहा है, आपसे सजेशन दिया जा रहा है, तो ये चीज़ है कि मतलब आपसे मैनेजमेंट क्या कर रहा है, वर्कर से पूछ के कर रहा है ना, चाहे वो टारगेट हो या फिर कोई सजेशन आपसे लेना हो, तो कितना अच्छा लग रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दिखता है ना, कॉपरेशन दिख रहा है, यहाँ पे आपसे कॉपरेट कर रहे हो आप उनको। ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि कि आप एक लेबर की तरह काम कर रहे हो, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है, आपको इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो इंडिविजुअलिज्म नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर कॉपरेशन है, साथ मिलके काम कर रहे हैं आपके। ऐसा नहीं आपके ऊपर थोप दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है इस काम के बारे में, तो आपको इंपॉर्टेंस मिलता है यहाँ पर। तो ये चीज़ यहाँ पर जो अपना आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। नाउ नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पर क्या है, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्कर है उनके डेवलपमेंट की बात करेंगे अपन, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के बारे में, पहली चीज को बेहतर करने के बारे में। और प्रॉस्पेरिटी मतलब उनको प्रॉस्पर भी करना है, मतलब कि डे बाय डे उनकी लिविंग स्टाइल इंप्रूव होनी चाहिए, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए, मतलब सैलरी वगैरह, प्रमोशन से उनका एक स्टैंडर्ड बनेगा। ये इस चीज़ों पे ध्यान देने की बात है। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। वर्कर एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन प्रॉपर ट्रेनिंग एंड देयर सिलेक्शन। तो यहाँ पर जो चीज़ है, यहाँ पर क्या ट्रेनिंग और सिलेक्शन की बात हो रही है। वर्कर की एफिशिएंसी किस पे होती है, कि कैसे उसको ट्रेन किया गया है। अगर आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है कंपनी के अंदर, तो आपको वर्क करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और सिलेक्शन भी वैसे ही रहना चाहिए कि सिलेक्शन के टाइम भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि जिस वर्कर को जिस काम के लिए गया है उसको उसी काम पे दो। जैसे कि अगर उसको मैकेनिकल इंजीनियर को रखा है, तो उसको डेफिनेटली आप उसको मशीनरी पे काम करने के लिए भेजिए, तो ये इसका प्रॉपर सिलेक्शन भी होना चाहिए। टेलर इंसिस्टेड ड्यू केयर शुड बी टेकन while selecting the employees after selecting they must be given job according to their qualification। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी मैकेनिकल इंजीनियर को हायर किया, ओके, सेम एग्जांपल को लेकर अपन आगे बढ़ेंगे। उस मैकेनिकल इंजीनियर जो कि मशीन में एक्सपर्ट है, मशीनरी पे काम करने पे, उसको अपन ने लाके कहीं कंप्यूटर पे बैठा दिया, बोला कि ठीक है चलो ये काम करो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वो काम
उसका जो उसका जो एफिशिएंसी है वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर आप उसको ये चीज़ दे दोगे तो ये उसके लिए उसको रखा ही नहीं गया था, ये तो उसको उसकी फील्ड से अलग हट के ही चला गया। तो किस तरह से आप सोचते हो कि उसकी ग्रोथ हो जाएगी और एफिशिएंट बन जाएगा उसमें? नहीं, क्योंकि उसने तो मशीनरी पे काम करना सीखा है। वो कोई इंजीनियर ज़रूर है, पर कोई कंप्यूटर इंजीनियर नहीं है जो उसको आपने आईटी डिपार्टमेंट में भेज दिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे सिलेक्शन करना उनका, और उनको क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब देना, वो बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉय मस्ट बी सेंट ऑन ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम टू अपडेट देयर नॉलेज। अब क्या होता है, कंपनीज के अंदर टाइम टू टाइम ट्रेनिंग होती है, जैसे कि आपको अगर कुछ टाइम पीरियड बीत गया और कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स होती है जो आपको ज़रूरी है कंपनी के अंदर करना, सेफ्टी से रिलेटेड हो सकती है, मैनेजमेंट से रिलेटेड हो सकती है, जिसको करके आपका डेवलपमेंट होता है। ओके, तो आपकी डेवलपमेंट करने से क्या होता है, आपका एफिशिएंसी होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति कोई भी ज्वाइन हुआ कंपनी में, अब उसको कंप्यूटर नहीं आता है, तो मैनेजर को पता होना चाहिए कि इसको कंप्यूटर की नहीं आता, तो इसको कंप्यूटर की ट्रेनिंग कराई जाए, तो इससे क्या होगा, इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो वो बेहतर काम कर पाएगा। ओके, डेवलपमेंट की बात है यहाँ पे। और तभी अगर वो अच्छा काम करेगा, तभी तो वो सैलरी वगैरह अच्छा परफॉर्म करेगा, तो ही तो सैलरी बढ़ेगी, है ना? तो वो चीज़ पे ध्यान दिया जाए। दिस विल एंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ कंपनीज एंड वर्कर। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको ट्रेनिंग करनी है, तो जिससे उनको एफिशिएंट बनाना है। एम्प्लॉय की डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पर कि उनको क्या करना है, हमको एफिशिएंसी बढ़ानी है, उनको अच्छा सैलरी उनको मिल पाए, ऐसा कुछ करना है उनको। ओके, केस स्टडी है। द टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड ऑर्गेनाइज रेगुलर ट्रेनिंग सेशन। एबीसी लिमिटेड क्या कर रही है, रेगुलरली ट्रेनिंग सेशंस कर रही है, मतलब अपने एम्प्लॉयज को डेवलप कर रही है ऑफ देयर एम्प्लॉयज, एंड इवन ड्यूरिंग सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम भी वो ध्यान बरत रहे हैं काफ़ी, और ट्रेनिंग सेशन उस टाइम भी चल रहे हैं, और जब उनका मतलब सिलेक्शन होता है उसके बाद भी ट्रेनिंग्स होती हैं कुछ। और फिर ये जो ट्रेनिंग की बात हो रही है, ये कौन सी ट्रेनिंग है, जब वो काम सीख जाते हैं उसके बाद उनको डेवलप करने के लिए रेगुलर सेशंस लगाते हैं। ऐसा मानती कंपनी की अगर आपने कुछ ट्रेनिंग लिया, तो हो जाए 1 साल हो गया अब आपको, हो सकता है आप ट्रेनिंग की कुछ बातें भूल गए हो, तो वो क्या करते हैं, आपको रिफ्रेशर ट्रेनिंग देते हैं, एक और बार आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो उससे क्या होता है, जो भी आप भूल गए होगे वापस रिकॉल करते हो, फिर आपको याद आ जाता है कि अरे ये चीज़ तो मैं भूल ही गया था, फिर आप वापस से उसको करने लगते हो, तो आपकी एफिशिएंसी वापस बढ़ जाती है। सो दे मेक श्योर दैट ओनली केपेबल एंड कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसा मैंने बोला कि सिलेक्शन भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे एम्प्लॉय का, तो कोशिश ये करनी कि अच्छा केपेबल इंसान जो कि काम कर सकता है, जिसमें दम हो थोड़ा, उसको ज्वाइन करवाना है अपने को। ओके, स्टेट द प्रिंसिपल फॉलोड बाय एबीसी लिमिटेड। तो यहाँ पर कौन सी बात हो रही है, यहाँ पर डेवलपमेंट की बात ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, है ना? तो डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटर एफिशिएंसी, यहाँ पर वो चीज़ थी। काफ़ी छोटी की स्टडी है, इस तरह की आती नहीं है, बट ये सिर्फ आपको क्लिक करने के लिए कि आपको आंसर क्लिक हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो, इन नेक्स्ट क्लास। सो टिल देन, थैंक यू। इसको जो भी अपन ने अभी पढ़ा है, इसको एक बार आप फिर देख लेना, ये जितने भी अपन ने करे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके।